Yes. So in the last class we have already discussed the parametric representation of line, and we have also done one problem related to parametric curve. है ना? In this class we are going to discuss the quadratic Hermite curve. So basic equation for any quadratic equation can be given as a plus bt plus ct square. It is quadratic equation. Quadratic polynomial equation. And जैसे मैंने आपको लाइन में डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, in case of line we have only two unknown, a and b. So to solve or to find the value of a and b, we have to give two boundary condition. So first boundary condition for the line is first point and second point. In this case you can see here we have total three unknown, a b c. तो क्वाड्रेटिक कर्व आइदर वो हर्माइट हो, आइदर वो बेजियर हो, कोई भी फॉर्म हो सकता है उसका. क्वाड्रेटिक कर्व को सिस्टम में प्लॉट करने के लिए यू हैव टू गिव थ्री कंडीशन. लाइक लीनियर इक्वेशन में ए और बी अननोन था, आपने दो बाउंड्री कंडीशन प्रोवाइड करी और आपको उसको कर्व मिल गया. क्वाड्रेटिक में सिमिलर वे में वी हैव टू गिव थ्री कंडीशन. सिस्टम आपसे थ्री कंडीशन रिक्वायर पूछेगा. तो फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको दी that you know the first point. कोई भी कर्व ड्रॉ करना है तो आपको फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो. तो फर्स्ट पॉइंट इज नोन एंड सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो नोन. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, तो अब लास्ट तक बने रहेंगे इसमें. यस, तो फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ये मैंने दे दिया. थर्ड कंडीशन मैंने आपको क्या दी? स्लोप एट फर्स्ट पॉइंट. Repeat, first point on the curve, last point on the curve and slope at first point on the curve. ये कंडीशन मैंने आपको दी. तो विद दिस कंडीशन अब मैं ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. स्टार्ट करते हैं. तो पी टी इज इक्वल टू a plus bt plus ct square put t is equal to 0 in this equation. तो p at 0 is equal to, यहां पे पुट करोगे तो you will get only a, other term will be 0, is equal to what? P naught. P naught is the first point. और फर्स्ट पॉइंट मुझे कैसे मालूम पड़ा? पैरामीटर T is ranging from 0 to 1. So at the minimum value of parameter you will get first point on the curve and maximum value of the parameter you will get the last point on the curve. ये मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी. तो here P naught. Now put at T is equal to 1. Maximum value of the parameter, to P at 1 is equal to A plus B plus C is equal to क्या मिलेगा? Last point on the curve. दो कंडीशन तो मैंने पुट कर ली. अब थर्ड कंडीशन. थर्ड कंडीशन इज व्हाट? इट इज द स्लोप एट द फर्स्ट पॉइंट ऑन द कर्व. तो स्लोप के लिए मैंने मुझे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, पेरेंट इक्वेशन का. कर लेते हैं. तो P डैश T इज इक्वल टू A टर्म 0 हो गया, B प्लस 2CT, T प्लस 2CT. Now put 0 here. तो B is equal to what? R naught. Slope at first point on the curve, it is R naught. It is given R. Now we have total three equation now. First equation, second equation and third equation.
So with the help of these three equations, find out the value of A, B and C. So from first equation, A is equal to P naught. A is equal to P naught. From third equation, B is equal to R naught. And from the second equation, C is equal to minus P1 minus A minus B है ना, तो P naught and R naught. So value of A, B and C in terms of known point, we have found out. We have found the value of A, B and C in terms of known point. पुट करते हैं करंट इक्वेशन में वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. मैं इसको हटा रहा हूं यहां से. तो P इज इक्वल टू ए P नॉट प्लस B R नॉट इंटू T प्लस C P1 minus P naught minus R naught into T square. अरेंज करते हैं इसको. ठीक है, सम P naught R naught एंड P1 को सेपरेट करते हैं. तो P naught यहाँ पे है 1, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो माइनस P स्क्वायर इंटू P नॉट प्लस P1 सिर्फ यहाँ पे है, तो P1 T स्क्वायर एंड माइनस प्लस T माइनस T स्क्वायर इंटू R नॉट. ये हटा रहा हूं. आई होप कि आप नोट कर रहे हो उसको. बहुत ही सिंपल वर्ड में मैंने यहाँ पे आपको डिक्टेट किया है, ये सिंपल टर्मिनोलॉजी में. यस, T माइनस T स्क्वायर इंटू. तो इन दिस इक्वेशन C, T is the parameter 0 to 1. जीरो टू 1 वेरी करेगा. P नॉट P1 एंड R नॉट. P नॉट P1 फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट एंड R नॉट स्लोप एट द फर्स्ट पॉइंट. ये जनरल फॉर्म हो गया. पैरामीट्रिक फॉर्म लिख लेते हैं. तो P इज इक्वल टू, पहले x का टर्म आएगा देन y का टर्म आएगा. पहले x का टर्म लिख रहा हूं. 1 माइनस T स्क्वायर इंटू P नॉट है, तो यहां पे x नॉट प्लस P1 है, तो T स्क्वायर इंटू x1 प्लस T माइनस T स्क्वायर. अब R नॉट को क्या लिखेंगे? फिर से लिखेगा dy by dx is nothing but the dy by dt अपॉन dx by dt. तो x के लिए ये लिखेंगे और y के लिए dy by dt. तो हियर r नॉट x, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया इसको. r नॉट x, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है पैरामीट्रिक में x एंड y बोथ आर दी फंक्शन ऑफ t. अब t का फंक्शन है, मैंने यहाँ पे स्लोप दे रखी है आपको, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड स्लोप एट फर्स्ट पॉइंट. तो स्लोप एट फर्स्ट पॉइंट के दो कंपोनेंट होंगे, बिकॉज dy by dx इज स्लोप, और वो भी फंक्शन है अगेन dy by dt, dx by dt. तो फॉर x इट इज dx by dt. आई होप इट इज क्लियर टू यू. दिस इज द फर्स्ट टर्म, x term. Now second way y, so same will be repeated except this value, ये x naught x1 और r naught x. नीचे लिखता हूं
1 minus t square y naught, here it is p naught, उसका y value, t square into y1 plus t minus t square into r naught y. This is the second term of the equation. This equation is known as quadratic. Quad क्यों बोल रहे हैं? It is clear, self explanatory है ये, because it is quadratic term. Hermite curve. Quadratic Hermite curve. बिकॉज ऑफ दीज बाउंड्री कंडीशन इसको हर्माइट कर्व बोलते हैं. जब अभी क्यूबिक में आएंगे और बेजियर कर्व का डेरिवेशन और क्यूबिक हर्माइट कर्व का डेरिवेशन जब करेंगे तो मैं कंपेयर करूंगा कि हर्माइट कर्व में यही बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं और बेजियर कर्व में कोई और बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहे हैं. ऑल्दो ये इक्वेशन सेम रहेगी. तो ये हो गया क्वाड्रेटिक हर्माइट कर्व. दिस इज द इक्वेशन. आप इसको नोट करिए. अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं तो ये और क्लियर होगा. प्लॉट कैसे हो रहा है. थोड़ा ब्रीफ करूंगा. जब क्वेश्चन और करेंगे तब ये और क्लियर होगा. एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट दिया. सपोज 0,0 फर्स्ट पॉइंट. लास्ट पॉइंट इज 5,0 एंड स्लोप. देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है. स्लोप इज इक्वल टू 1. न्यूमेरिक वैल्यू दे दी है, एंगल के फॉर्म में नहीं दिया. जब आप एंगल फाइंड आउट करोगे तो आपको 45 डिग्री एंगल मिलेगा, है ना. 10 स्लोप इज इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सिंपल है. मैंने आपको यहाँ पे dy/dx की वैल्यू दी हुई है. दिस इज दी tan थीटा, वेयर थीटा इज दी एंगल ऑफ स्लोप. तो फर्स्ट पॉइंट, here it is the first point P naught. This is the last P1. Slope जैसे मैंने बताया 1. ये अब जो कर्व प्लॉट करेंगे वो फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट से पास होगा और ऐसा पास करना है कि वो फर्स्ट पॉइंट पर 45 डिग्री का स्लोप फॉर्म करे. सिंपल है. ये मैंने कर्व बना दिया. दिस इज द हर्माइट कर्व. पैराबोला नहीं है ये, हर्माइट कर्व. अब देखना यहां पे आर नॉट, एज आई स्पेसिफाइड, आर नॉट इज नथिंग बट dy by dt and dx by dt. ये वैल्यू मैंने 1 दे रखी है तो इसका जो रिजल्टेंट है वो 1 आएगा, है ना. बट आपके पास फ्रीडम है. क्या फ्रीडम है? dy by dt आप 1 पुट करो, dx by dt आप 1 पुट करो, तब भी ये क्या आएगा? 1 आएगा. मतलब फर्स्ट पॉइंट पे स्लोप चेंज नहीं होगा. आपके पास और ऑप्शन है. यहां 2 पुट कर दो, यहां 2. जो मैं बोल रहा हूं ये अपन क्रियो में करके देखेंगे. 2 पुट करो, 2 पुट करो, तब भी यहां पे 1 ही आएगा. अल्टीमेटली चेंज नहीं हो रहा है. बट कर्व में क्या चेंज होगा? अगर मैं यहां पे 2 और 2 पुट कर देता हूं तो कर्व में क्या चेंज होगा देखना. ऐसा कर्व हो जाएगा. इस पॉइंट पे ये पुल आउट हो. वही सेम 3 पुट करता हो तो ऐसा बनेगा. 5 पुट किया तो ऐसा बनेगा. तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ एनालिटिक कर्व और सिंथेटिक और सॉरी एस्थेटिक कर्व और सिंथेटिक कर्व. ये शेप आपके पास है. फाइंड द equation of quad Hermite curve if first point
इज इक्वल टू 0,0, लास्ट पॉइंट इज इक्वल टू 10,0 एंड R0 इज इक्वल टू 2। 5 ले लो, उसको बहुत छोटा बनेगा 2 में। यस, एंड ऑल्सो फाइंड 5 पॉइंट ऑन दी कर्व। क्वेश्चन का पैटर्न सेम ऐसे ही आता है एग्जाम में। आपको कंडीशन दी रहेगी, यू हैव टू फाइंड द कर्व, और उसके बेसिस पे 5 पॉइंट 10 पॉइंट जैसा भी है वो निकालना है आपको। तो इसका फर्स्ट पार्ट बताता हूं कैसे बनेगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ हर्माइट कर्व, जो मैंने टॉप पे लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करिए आप लोग भी, मैं भी यहां पे कर रहा हूं। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, इट इज 0 हियर, टी स्क्वायर इंटू x1 is also 0 here, plus t minus t square into r0। अब जैसे मैंने डिस्कस किया, r0 is equal to dy by dx means dy by dt upon dx by dt। तो 5 है, तो आप इन दोनों के लिए 5 वैल्यू चूज कर सकते हो, या 10 भी चूज कर सकते हो, कोई भी। तो अभी मैं सिर्फ 5 कर रहा हूं, इसके बाद आप मुझे सॉल्व करके बताओगे जब यहाँ पे 10 रखेंगे आप और कुछ रखें। तो दोनों के लिए मैंने 5 चूज किया। तो हियर इट इज 5, दिस इज योर एक्स वैल्यू, करली ब्रैकेट में एक्स वैल्यू है। यस, x1 की वैल्यू 10 है ना? हाँ, ठीक। ना 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू वाई नॉट, इट इज अगेन 0, टी स्क्वायर इंटू y1, ये 0 है, प्लस टी माइनस टी स्क्वायर इंटू 5, दिस इज योर y वैल्यू। सर टी स्क्वायर नहीं, सिर्फ टी आएगा। कहां पे आ रहा है टी? 10 इंटू अच्छा। टी एंड 0 इंटू टी। यहाँ पे टी स्क्वायर नहीं होगा मतलब? हाँ ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, यस, बढ़िया। तो 0, 10 और ये 5, तो फाइनल इज व्हाट? 5t माइनस 5t स्क्वायर, दिस इज योर x वैल्यू, एंड हियर इट इज 0, इट इज 0, तो 5t माइनस 5t स्क्वायर, दिस इज योर। तो आपको जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई थी उसके हिसाब से दिस इज द इक्वेशन ऑफ हर्माइट कर्व, क्वाड्रेटिक हर्माइट कर्व। ये इक्वेशन मिल गई आपको। सर 10t स्क्वायर नहीं बच रहा है, 10t स्क्वायर ये वाला तो मैंने माइनस किया ना। अच्छा ठीक ठीक सर। प्लस हो गया, इसे मैंने माइनस कर दिया तो ये प्लस हो गया। सिंपल है, आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी याद करना पड़ेगा, क्यूबिक भी याद करना पड़ेगा, और बेजल कर्व की इक्वेशन भी याद करनी पड़ेगी सेकेंड यूनिट के लिए। नहीं है तो फिर डिराइव करना पड़ेगा। मैं इसका भी मैट्रिक्स फॉर्म बताऊंगा जो आपको इजी होगा याद करने के लिए। मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत सिंपल बनता है मैट्रिक्स फॉर्म उसका। ये आपका आ गया इक्वेशन। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड 5 पॉइंट ऑन दी कर्व। तो किसी भी कर्व में कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ता है, उस कर्व की इक्वेशन में किसी एक पैरामीटर को वेरी करो। कौन से पैरामीटर को? जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। तो इन पैरामीट्रिक इक्वेशन t इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
बट इसका रेंज दिया हुआ है, रेंज स्पेसिफाई किया हुआ है 0 to 1। तो व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, अब वो क्या मिलना चाहिए, p एट t इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पॉइंट मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं मिल रहा है क्या। व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू 0, इट इज 0, इट इज 0, यस, x इज 0, 0 0, y इज ऑल्सो 0, एंड नाउ पुट t इज इक्वल टू 1, तो 1 1 ये हो गया 10, यहाँ पे 1 पुट करो, ये हो गया 0, तो 10, 0। तो 2 पॉइंट तो मिल गए। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू 0, एंड लास्ट पॉइंट हो गया व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू 1। बाकी पॉइंट कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो एक टेबल बनाता हूं मैं, आप मुझे वैल्यू बताओगे। ये हटा रहा हूं ऊपर वाले इक्वेशन, और इसको आप ड्रॉ भी करेंगे, t x एंड y। t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0.2, t इज इक्वल टू 0.4, t इज इक्वल टू 0.5, t इज इक्वल टू 0.6, t इज इक्वल टू 0.8 एंड 1। चलिए सॉल्व कीजिए, मुझे वैल्यू बताइए फटाफट। पहले सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आप अपने कैलकुलेटर में इक्वेशन लिखोगे, हर एक वैल्यू को इंडिविजुअल सॉल्व नहीं करोगे। इक्वेशन देखना, अगर आपको इक्वेशन नहीं बनता है तो आप यूट्यूब में जाके देखेंगे, इक्वेशन बना के ही सॉल्व करेंगे। उसमें आप एक बार इक्वेशन फीड कर दोगे तो आपको फट से आंसर मिल जाएगा, आपको बार बार ये काम नहीं करना पड़ेगा। 0 0, ये हो गया 10 एंड 0। आपको बाकी वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इसके, अगर आपको इक्वेशन याद है तो। यस, आप लोग सॉल्व कीजिए। हाँ, 1.2, 0.8, 0.8, 2.8, 2.8, 1.2, कोई एक बोलो है ना, नमन बोले या फिर केतन ही बोले, कोई एक। 3.75, 3.75, 0.25, 0.25, 1.25 sir, 1.25, 4.8, 4.8, 1.2, 1.2, 7.2, 7.2, 0.8. 0.8। यस, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना। बहुत सिंपल बनता है, बाकी लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, तब तक आप ये नोट कर सकते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक हर्माइट कर्व अच्छा हाँ, हम लोग लैन पे वर्क कर रहे हैं। अगर लैन कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो ये नेटवर्क का इशू नहीं होगा, वाईफाई से हो रहा है, एक दो दिन का समय लगेगा, सेटअप कर रहे हैं उसको। फाइंड क्वाड्रेटिक हर्माइट कर्व इफ फर्स्ट 0, 0, लास्ट पॉइंट 10, 0 एंड स्लोप is given by line passing through point 0, 0 and 5, 5. लाइन पासिंग थ्रू 5, 5 ने 6, 6। प्रीवियस क्वेश्चन में हटाओ क्या इसको, टेबल को,
हटा दीजिए सर। हाँ, आलोक कुमार माइक ऑफ करो। हाँ, यस। तो प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट एंड स्लोप एट द फर्स्ट पॉइंट आपको डायरेक्टली दिया हुआ था। आर नॉट इज गिवन टू यू 1, तो मैंने वहां पे एजम्पशन दिया आपको कि dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी आप 5 लेके पुट करो। मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि सर 5 क्यों ले रहे हैं, 10 क्यों नहीं ले रहे हैं, या एग्जाम में कैसे होगा, है ना। 10 भी लोगे तब भी वो करेक्ट है, 5 लोगे तब भी वो करेक्ट है। तो वो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आपको एग्जाम में हो सकता है वैसे क्वेश्चन ना पूछे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, इसमें आपको फर्स्ट पॉइंट तो दिया होगा, लास्ट पॉइंट भी दिया होगा, बट स्लोप वो इस फॉर्म में दिया होगा। Slope is given by line passing through point 0, 0 and 6, से कोई भी पॉइंट हो सकता है इसका। तो आपको इस लाइन का यूज करके स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वाड्रेटिक हर्माइट कर्व या जो भी आप कर्व ले रहे हो, क्वाड्रेटिक हर्माइट कर्व है ना, ये वैल्यू करनी है। तो पहले क्या करता हूं मैं, पहले तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं और ये जो पॉइंट यहाँ पे दिए हैं उसको प्लॉट करता हूं, फिर डिस्कस करेंगे। 0, 0 ये दोनों पॉइंट सेम है, P0, और ये पॉइंट है 10, 0, P1 एंड P0 is 0, 0। लाइन क्या है 6, 6 और दिस इज द लाइन, ये पॉइंट है 6, 6। So slope is given by this line passing through point 0, 0 and 6, 6. Now means this is the slope of the curve at first point. अगर मैं एक ऐसे रैंडम कर्व ड्रॉ करूँ यहाँ पे जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन, ये मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया, तो इस कर्व पे ये जो लाइन है वो इसका स्लोप है। इस कर्व पे जो लाइन है स्लोप है। स्लोप इज गिवन बाय लाइन पासिंग थ्रू। तो सबसे पहले मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेता हूं और वहां से इसका एंगल निकाल लूंगा dy बाई डी एक्स। वही dy बाई डी एक्स इस कर्व के लिए भी फर्स्ट पॉइंट पे dy बाई डी एक्स होगा, बिकॉज इट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट फर्स्ट पॉइंट। तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे, इस लाइन का dy बाई डी एक्स निकालना है। तो आप कल की क्लास में देखोगे तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे, P डैश T is equal to x1 minus x0 into y1 minus y0। कल के डेरिवेशन पे है। हाँ, जो डेरिवेशन मैं कर रहा हूं या जो भी अपन ब्लैक बोर्ड पर पढ़ रहे हैं उसको मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है उसमें, बट आप जब रिवाइज करोगे तो आपको वो मिलेगा, तो आप उस यूट्यूब में जाकर इसको देख सकते हो। जो लोग कल अटेंड नहीं किया था क्लास उनके लिए बता रहा हूं मैं ये। तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, P डैश T इज इक्वल टू x1 माइनस x0 y1 माइनस y0। ये इस लाइन का स्लोप है। स्लोप है मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी क्या है, y1 माइनस y0, और dx बाई डी टी क्या है, x1 माइनस x0। तो y1 इज द लास्ट पॉइंट और y0 इज द फर्स्ट पॉइंट। इसको आप ऐसे याद रखोगे, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। तो हियर 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0, 6 माइनस 0। ये इस लाइन का है। आप इसी वैल्यू को यूज करोगे आपके कर्व के लिए, क्योंकि लाइन का स्लोप ही तो है, पॉइंट 0 से पास हो रहा है। तो अब मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन इनपुट कंडीशन लिखता हूं
हर्माइट कर्व के लिए क्या होगा इनपुट कंडीशन? फर्स्ट पॉइंट 0,0, लास्ट पॉइंट 10,0 एंड आर नॉट इज इक्वल टू dy by dt upon dx by dt. In this case it is 6/6. अल्टीमेटली ये 1 आ रहा है, 1 ही आएगा, बट आपको अब ये फिक्स नहीं करना पड़ेगा अपने से। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि dy by dt आपको 6 लेना है और dx by dt भी 6 लेना है ना? ये हो गया आपका 1, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। यही वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। ये कब हुआ था चेंज? देखना, मैंने बोला दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ लाइन एंड दिस इज द सेकंड पॉइंट ऑफ लाइन। तो लाइन के जो डायरेक्शन है, ये जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन है ये फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट। कहीं गलती से आप इसको फर्स्ट पॉइंट ले लेते और इसको लास्ट पॉइंट लेते तो ये होता -6 और -6, अल्टीमेटली 1 आता। बट फिर कर्व कैसा होता? कर्व ऐसा प्लॉट हो जाता, सिर्फ ये वैल्यू चेंज करने से, जहां -6 होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट स्पेसिफाइड इन द लाइन। तो ये मैंने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, ये मैंने लास्ट पॉइंट ले लिया, तो लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, तो लास्ट पॉइंट इज 6, 6 minus 0, 6 minus 0, तो इन हियर इट इज 6 and 6। अगर बाय मिस्टेक आप इसको लास्ट पॉइंट ले लेते और इसको फर्स्ट पॉइंट लेते तो आपका जो डायरेक्शन होता, डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन वेक्टर, वो रिवर्स हो जाता। उसके केस में ये माइनस आता, ये माइनस आता, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट था, ये लास्ट था, तो 0 - 6 माइनस, तो ये आपका कर्व ऐसा बन जाता। ये सभी चीजें आप नोट करेंगे, जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको बताऊंगा मैं। करेंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट क्रियो में, स्क्रीन शेयर कर, डोंट वरी। So you know all the values which is required, which are required to plot to find the equation of Hermite curve under the given condition. बस सिंपल है। यस, बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो, इस चीज में कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। और भी कोई कंफर्म करो एक्सेप्ट नमन गुप्ता के। ठीक, बढ़िया। सर पिछले क्वेश्चन में हम लोग del y by del t अपॉन del x by del t इक्वल्स टू 5 रखे थे। हाँ, 5 रखा था। तो फिर सर del y by del t को 5 रखते हैं और del x by del t को भी 5 रखते हैं, तो वो तो dy by dx इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन में इट इज गिवन कि r नॉट इज इक्वल टू 1, तो Yes, r नॉट इज इक्वल टू, अल्टीमेटली आपको इसको 1 करना था लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो आप इसको 5 रखो, 10 रखो, 20 रखो, बस। हाँ, इसको अगर 10 रखोगे तो ये भी 10 रखना पड़ेगा। यू आर फ्री टू पुट एनी वैल्यू, आपका इसका रिजल्टेंट सर बनाना चाहिए। r नॉट 5 रखने के लिए बोल रहा था पिछले क्वेश्चन में। 5 बोला था क्या रखने के लिए? यस सर। अच्छा, नहीं तो भी गड़बड़ हो गया, उसको क्वेश्चन को चेंज कर लो, 1 लिख दो वहां पे, है ना, r नॉट इज इक्वल टू 1। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, बहुत बढ़िया। r नॉट इज इक्वल टू 1 कर लो, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। अगर वो 5 बोला था ना तो r नॉट ऐसा होता, देखना ये 5, तो कैसा होता r नॉट? 25 डिवाइड बाई 5, 50 डिवाइड बाई 10, इस फॉर्म में होता। फिर तो dy बाई dt इज 25 और dx 5। आपको ऐसा रखना पड़ता है, r नॉट 5 था लास्ट क्वेश्चन में, तो आपको dy 25 और dx 5, या फिर उसी के मल्टीपल में आपको बढ़ाना पड़ता है वैल्यू। हुआ क्लियर? या फिर ये 15 डिवाइड बाई 3, कोई भी वैल्यू जो से कॉम्बिनेशन आपको 5 प्रोवाइड करे, तो ये रखना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में आपको फिक्स कर दिया उसने कि ये जो लाइन है यही स्लोप, इस कर्व का स्लोप है, तो आपको वहां से dy बाई dx मिल गया, जो कि किताब क्या था, 6 6 था, और वहां। ठीक है, क्लियर हुआ? टू p नॉट प्लस t स्क्वायर 1 था, ये 1 माइनस t स्क्वायर था,
P1 प्लस T माइनस T स्क्वायर इंटू R नॉट। ये इक्वेशन। अब आपको पता है कि R नॉट क्या है। जब आप इसको x के लिए लिखोगे तो यहाँ पे dx बाई dt हो जाएगा, जब आप इसको y के लिए लिखोगे तो यहाँ पे dy बाई dt हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको जनरल फॉर्मेट में रखा हुआ है, x और y के फॉर्मेट में काम नहीं कर रहे है ना। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करता हूं, 1 माइनस टी स्क्वायर एंड t माइनस टी स्क्वायर इंटू P0, P1 एंड R। सिंपल है, रिवर्स कैलकुलेशन करो, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू P0 प्लस टी स्क्वायर इंटू यू प्लस ये, अल्टीमेटली आपको यही मिलेगा है ना। आपके पास जब भी कोई दो इक्वेशन आता है ना सॉल्व करने के लिए अननोन, तो आप उसको हमेशा मैट्रिक्स फॉर्म में बना के सॉल्व करना, रिवर्स करके आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। बताऊंगा उसका ट्रिक में कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे तो जल्दी सॉल्व होगा। यस, तो 1 माइनस टी स्क्वायर, जैसे आप गेट में एग्जाम दे रहे हो, आपको दो इक्वेशन आ गई, उसमें दो अननोन रहे, उसको सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू मैनिपुलेट करते हो यहाँ से वहाँ, उसको बेटर है कि मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके फर्स्ट से इनवर्स निकाल लो। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स बहुत इजीली निकलता है ना। देखेंगे उसको। अब यहाँ देखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर में टर्म ले लिया, सेपरेट कर लिया, ये बाउंड्री कंडीशन हो गई, या इनपुट कंडीशन बोलना चाहिए यहाँ पे। ये और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखेगा 1 टी स्क्वायर इंटू P0 P1 R। अब इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं, इस टर्म को। सभी इक्वेशन में बेजर कर्व हो, हर्माइट कर्व हो, जो भी कर्व हम डेरिवेशन करेंगे, ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट सेम रहेगा। आपको बस ये याद रखना है, मैट्रिक्स सिर्फ दो में। बेजर कर्व में बहुत सिंपल है, वो बताऊंगा। वैल्यू पुट करते हैं, इस टर्म को लाना है, तो मैट्रिक्स कॉल रो डिवाइड बाई मल्टीप्लाई विथ कॉलम, तो ये हो जाएगा 1 0 एंड माइनस। रिवर्स करेंगे तो समझ में आएगा, 1 इंटू 1 प्लस टी इंटू 0 माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस, ये टर्म मिल गया। सेकेंड टी स्क्वायर है, मतलब 1 इंटू 0 0 एंड 1। थर्ड 0 1 माइनस, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आपको मिलता है। ठीक है, थैंक यू।